ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, FIR हुई तो ਤੁਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? जो लोग कह रहे हैं कि भाई भगोड़ा हो गया, इधर हो गया, तो ये सब जो है एक प्रोपगंडा रचा जा रहा है मुझे बदनाम करने का। मैं पिछले हफ्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अगर हम चतुर होते ना इस मामले में तो हम भी कुछ ना कुछ कर देते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन है प्रोफेट बजिंदर सिंह? तो जब किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, कोई फेमस हो जाता है, तो लोग रचते ही हैं, प्रोपगंडा रचते हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਹਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। सिख लोग जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं कि लेकिन उनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा प्रेम है। यहाँ पर पंजाब में एक शांति का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, FIR ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? चलो आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। आपके चैनल के ज़रिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप देख ही रहे हैं कहाँ पे हैं। हम इंडिया में चंडीगढ़ में बैठा हूँ। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई भगोड़ा हो गया, इधर हो गया, तो ये सब जो है एक प्रोपगंडा रचा जा रहा है मुझे बदनाम करने का। और देखो मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, सेवा करता हूँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाता कहीं। तो लेकिन जब सेवा करने के लिए जाना पड़ता है तो वो सबको पता होता है कि अगर वो ऐसी बात कर रहे थे तो उनको पता है कि भाई पिछली बार 2018 में जब मैं इंग्लैंड गया था तो इसी आदमी ने, जिसका नाम रोकी है, इसी आदमी ने एक प्रोपगंडा रचा था कि इसको ऐसे ही झूठा केस बना के और पर्चा दर्ज करा दिया, हमें पता ही नहीं था। तो उसके बाद मेरा फेसबुक पर पोस्टर डला हुआ था कि मेरी इंग्लैंड में मीटिंग है और यूट्यूब पे पोस्टर था इंग्लैंड में मीटिंग है, अगर मैं कहीं चोर हूँगा या छुपाऊँगा तो मैं ऐसे ही भाग जाऊँगा। तो इसने प्रोपगंडा बनाया मिल के, अब मुझे नहीं पता किसके साथ मिल के किया इसने, और इसने हमारे ऊपर 2018 में एक पर्चा करा दिया और एयरपोर्ट पे मुझे पकड़वा दिया। तो देखो जिसको पता होता है, शक होता है, कोई ऐसी बात होती है, कुछ होती है, तो वो सारी चीज़ें क्यों करेगा ऐसे। दूसरी बात कि अभी जो है ये सेम गेम बना रहा है क्योंकि हमारी कोर्ट केस की डिसीज़न आ रहा है उसी केस का। 2018 वाले ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ रेप ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ, जो मामला दर्ज हुआ था उसी में एक डिसीज़न आ रहा है कि क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, जो भी सब कुछ इसने सबूत हैं वो सब कुछ नकली हैं, क्योंकि पहले ये पैसे की डिमांड कर रहा था और बाद में जो है जब हमने मना कर दिया
तो इसने इसके हाथ खड़े हो गए। तो अभी उस दिन से ये लगातार ढूंढ रहा है। अभी इसकी माँ ने आज और इसके डैडी ने, इसके भाई ने खुद इसके खिलाफ आज प्रेस के सामने आके बयान दिए कि ये अगर समाज सेवक बनता है तो इसकी पूरी हिस्ट्री जान लो। और उन्होंने बताया, मुझे तो पता नहीं कि आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। तो इसने यही चाल इसने चली। तो इस आदमी के थ्रू आप देख रहे हैं ना, जिस विजय के थ्रू, तो इसने क्या किया, इसने एक प्रोपगंडा रचा। इसने देखा कि भाई इनकी आपस में फेसबुक यूट्यूब पे लड़ाई चल रही है। और देखो लड़ाई कहाँ से शुरू हुई कि यहाँ पर कि देखो हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारे लिए तो सब भाई हैं। तो हम तो हम सबको सिखाते हैं कि भाई एक दूसरे को माफ़ करो, लेकिन हम क्यों कहेंगे किसी को। लेकिन ये आदमी देखो, ये मेरे साथ, इसने मेरी शादी में आया था, मेरे साथ खड़ा है, पास्टर है ये। और की नाम है ना था? पास्टर विजय। तो ये जो है इसके बाद कि ये कहने लगा कि हमारे बीच में कुछ हुआ, तो ये कहने लगा कि भाई ये मैं रोज़ ही बयानबाजी करने लगा फेम लेने के लिए कि मैंने इसकी शादी कराया, मैंने वो किया। ठीक है भाई, हम तो नहीं कह रहे नहीं कराया, तो शादी तो दुनिया कराती है। लेकिन जो है मेरे बारे में कि भाई ये चाहता था कि भाई मेरे साथ मिले, मेरी पोस्ट डाले। तो लेकिन क्या है कि वो कुछ बातें थी आपस में बीच में जो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन उसके बाद जो है इसने उस दिन से एक लड़के के थ्रू, बाइबल फैक्ट वाले के थ्रू, कि मैं अब धमकी दी अपने फेसबुक चैनल पे कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका दूध का दूध पानी करूंगा, मैं बताऊंगा ये कौन है। उस दिन से ये लग गया, शुरू हो गया। और शुरू होते जब इतने टाइम से ये बोल रहे हैं, इसकी फेसबुक पे आप देखो, इसकी उस पर देखो, सारा कुछ ये मेरे बारे में अनाप शनाप बोली जा रहा है। और दूसरे चर्चों को बोली जा रहा है, सबको बोली जा रहा है कि ये करो, वो करो, इसके खिलाफ वो करो। कारण रीज़न क्या है वो तो इसी को पता है ना। लेकिन जब इसने बहुत ज़्यादा ही कर दिया तो हम देखो, अगर हम ऐसी बात होती तो हम झगड़ा करते। तो हमने तो कानून का सहारा लिया, FIR 119 इनके ऊपर कराई। और जब FIR 119 होगी तो उसके बाद ये दूसरे चर्चों से हेल्प मांगने लगा। और जब हेल्प मांगने लगा पास्टर विजय, हाँ पास्टर विजय, फिर उसके बाद ये समाज को भड़काने लगा, सामाजिक लोगों को बोलने लगा ये दंगा करेगा, ये फलाना करेगा, ये देश छोड़ के भाग जाएगा, ये ऐसा है वैसा है। आज भी, कल भी बोल रहा है वीडियो में कि ओहो, एक तरफ तो ऐसे बोल रहा है कि मेरी फलाने लोगों मेरी मदद करो, आओ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी मदद करो, मैं देखो, और मेरी मदद करो। अरे तू मेरे से उम्र में बड़ा है, मैं उम्र में छोटा हूँ, ठीक है ना। मैं एक एक करके सर ट्रायंगल मैं जो समझ पा रहे हैं कि ट्रायंगल बन गया, पास्टर विजय, रॉकी और ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ट्रायंगल ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ? आप देखो ना, ये क्या है कि चर्च की, मतलब इनका चर्च बढ़ गया, इनका नाम हो गया, बस यही है और कुछ नहीं। ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। हाँ जी, बस वही करके इन्होंने, मतलब कि ये चंडीगढ़ में चाहते थे कि भाई चंडीगढ़ में प्रॉफिट बजिंदर चर्च ना खोले। मैंने भी वहीं चर्च खोला था चंडीगढ़ में। तो ये बोल रहा था भाई तुम चंडीगढ़ में चर्च क्यों खोल रहे हो, तुम दूसरी जगह खोलो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो यहाँ पे जितना 2018 में पहले जो मेरे पर्चा कराया, वो भी आज मुझे पक्का साबित हो ਗਿਆ ਕਿ इसी का इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा कनैक्शन उस 2018 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਰੌਕੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ, ਰੌਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੌਕੀ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਤੁਸੀਂ ਰੌਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੌਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ क्यों? देखो, जब चंडीगढ़ में मैं आया तो चंडीगढ़ में कुछ लोग यही मेरा बताने का है कि जब से यही आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो और जो है इसी की हेल्प ली गई रॉकी की उस टाइम भी। और उसके बाद देखो ना, ये फेसबुक पे कमेंट आ रहे कि अवतार ढाएगा लंका को, ढाएगा। देखो ये किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं, आप क्रिश्चियनों के खिलाफ जा रहे हैं, आप किसके वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी तो कानून बनता है। देखो इसने अपनी फेसबुक पर डाला है प्रोफेसी, अवतार मरवाएगा लंका के राजा रावण को। वो तो राम ने मारा था। मतलब कि मुझे क्या पता उनकी हिस्ट्री, तुझे ज़्यादा पता उनकी हिस्ट्री। मतलब तू उनके बारे में बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि भड़का रहा है, मुझे बयान दे रहा है कि पूरी दुनिया को भड़काएगा। तो ये दुनिया को भड़का रहा है। और उसके बाद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस लड़की के साथ और इसके राजा के साथ। देखो मैंने बताया था उस दिन भी कि ये जो लड़का था
जब ये काफ़ी देर से कंट्रोवर्सी कर रहा था तो उसके बाद इन्होंने रॉकी की हेल्प ली, और मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी कि ये दोनों इकट्ठे होकर रॉकी के साथ खड़े हो गए उस फोटो में, कि ये देखो रॉकी और ये लड़का, ये इसी का लड़का है विजय का, और ये दोनों वहाँ पर खड़े हो गए रॉकी की हेल्प मांगने के लिए। इसने इसको इस डेट को आश्वासन दिया आज से 3 महीने पहले कि मैं तेरी मदद करूँगा, मैं इस पर झूठा पर्चा कराऊँगा। और जिस न्यूज़ वाले ने इसकी खबर लगाई उसको इसने धमकी दी, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है 3 महीने पहले, कि तू प्रॉफिट बजिंदर के से मेरा क्यों जोड़ रहा है नाम, मैंने अगर फ़ोटो खिंचा ली तो क्या कर दिया, मैं इनके साथ नहीं हूँ, झूठ बोल रहा है। लेकिन बाद में इसने क्या किया कि अब खुलकर आ गया सामने, कि जब आई तो इसी ने ये प्रोपगंडा रचा, और इन्होंने देखा कि भाई जो है कि भाई हम ऐसा क्या हथियार करें। रॉकी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ पर्सनल क्यों होया? पर्सनल वही चर्च दा मैटर, ये भी क्रिश्चियनिटी नाल ये अभी आज जिसकी माँ ने कंफर्म कर दिया ना, ये पैसे लेता है, ये काम करता है ऐसे लोगों को फंसाने के लिए। ये आज इसकी माँ ने खुद बताया कि इसके ऊपर पर्चे चल रहे हैं इन चीज़ों के, स्मैक के, गैंगस्टर के, और ये जो भी 376 के अलग अलग पर्चे चल रहे हैं कि ये जो भी करता है। तो उसके बाद अब इसने एक नाटक कर लिया कि मैं समाज सेवक बन जाता हूँ कि लोगों की नज़र में। तो समाज सेवक ठीक है, तू बन गया समाज सेवक, लेकिन अब तो जो है, लेकिन उसके बाद भी अब हमने तो कभी इसको कॉल नहीं किया, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, हमें तो हमारा भरोसा तो परमेश्वर पे है। देखो अगर आप बता दो कि जब से इसने मेरे ऊपर केस किया 2018 से लेकर 2024-25 तक भी, कि कोई कॉल की हो उसको हमें प्रूफ दे, कोई हमने इसके साथ कोई कंप्लेंट की हो, वो कह रहा है कहना मेरे खिलाफ पर्चे दर्ज कराए ने, कंप्लेंट कराई है। जब एक आदमी जानबूझकर, इसने क्या किया, पीछा किया, इसने बदतमीजी की, इसने पूरी रिकॉर्ड है, सब कुछ है, बाद में इसने कोर्ट में रिट लगाकर वहाँ पर जाके उसने वो कर दिया, इसने किया, इसने सारी चीज़ें की, ये हमारा पीछा करता रहा। उसके बाद भी ये उसके एक दिन जो है हम जा रहे थे तो उसके बाद भी इसने गुंडे लगाए पीछे। तुसी परिवार दे नाल सीगे? हम हाँ फैमिली के साथ था। तो मेरी बेटी तो वो फिर मैं घर आ गया, तो उसके बाद फिर ये मेरी बेटी और उसकी मम्मी जब बाज़ार में गए तो फिर इसने उनके पीछा किया। मतलब कि वो सारी डिटेल है पुलिस के पास है, और इसने किया तो हम झूठ क्यों बोलेंगे। तो उसने जो है इसको हमें नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, हम तो संत आदमी है। अगर हमें ऐसे पता होता है कि ऐसे भी करते हैं तो हम भी वकील पकड़ के ऐसे चीज़ों में लग जाते हैं। इसको पता है इसने कैसे झूठ मार के रूट लगा के पर्चा कैंसिल करा लिया। ਤੁਹਾਡੇ ट्रायंगल ਦਾ मैं जिक्र कर रहा कि ਚੱਕਰ ਵਿਊ ट्रायंगल वाला ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਹ ट्रायंगल ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। देखो मेरा एक भी बंदा, एक भी कोई मेरा आदमी आप प्रूफ कर दो किसी ने धमकी दी हो। देखो कोई भी अगर कोई अपने आप ही करी जाए, हमें क्या लेना उससे। लेकिन देखो हमारा जो है ये सब झूठ है, मंदगढ़ंत है उनकी बात, और हमारा कोई किसी से उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो बेटी जैसी है वो, और उसकी माँ हमारी बहन जैसी है, तो हम तो सेवादार थे हमारे। लेकिन हमारा कोई उनसे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरीके के आदमी निकलेंगे, इस तरीके की फैमिली निकलेगी। हमारा तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये जो है जो भी हमारा देखता था, प्रधान अवतार देखता था, लेकिन उसमें अभी जो इन्होंने वाकई कभी नहीं उस विक्टिम ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ, ਚੈਟਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੈਵਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲकुल याद नहीं है। देखो मैं फ़ोन नहीं रखता। दूसरी बात कि अभी जो है आपको मिलने के लिए कितने बीच में किस किस को फ़ोन करने पड़े, है ना। तो अभी क्या है कि ऐसे नहीं हम किसी को डायरेक्ट मिलने देते हैं, क्योंकि अभी जो इतने टाइम ही नहीं है हमारे पास। हमें प्रार्थना करनी होती है लोगों के लिए, खुद अपने लिए भी करनी होती है। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होती किसी को, तो उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है ना। तो हमें भी अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर खाली टाइम पास करेंगे, ऐसे ही बैठेंगे तो क्या फ़ायदा। तो लेकिन पर जो है कि अब जो इन्होंने प्रोपगंडा रचा है, ये बार बार कह रहे हैं कि भगोड़ा हो गया, भगोड़ा हो गया। अब आपके सामने है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कि देखो कोई भी करे कोर्ट में नहीं जाते, तरीक पे नहीं जाते, तो आप बता दो कि मैं कोर्ट में कब नहीं गया। एक 2018 वाले केस 'ਚ मोहाली दी कोर्ट ने ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी करता, वो क्यों फिर किया उन्होंने? अब देखो वो मैं कोर्ट की बात है, वो कोर्ट को पता होगा, मैं तो इन चीज़ों, और मेरे वकील को पता होगा, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं अब तरीक आ रही है, मैं जाऊँगा ही। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਉਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? हाँ मैं जा रहा हूँ। ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ? हाँ जी बिल्कुल, मैं कोई चोर थोड़ी है कि मैं भज जाऊँगा। तो जो एलिगेशन वो लगा रहे हैं तो उसका हम धन्यवाद करते हैं पुलिस प्रशासन का भी, कि पुलिस प्रशासन जो है वो जो न्याय करेगी। हमारा तो मकसद यही है कि भाई हमारा तो भरोसा परमेश्वर पे है, और वही जो है आपस में फ़ाइट करी जा रहे हैं, कभी इसी के साथ मिले जा रहे हैं, कभी उसके साथ मिले जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। देखो हमने कोई ऐसे तो मेरी भी बीवी है, मेरी भी वाइफ है, मेरे भी बच्चे हैं, अगर ऐसे ब्लेम लगाने लगे तो हम भी लगा सकते हैं। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ? मेरे घर में तो अच्छा माहौल नहीं है किसके घर में होगा अच्छा माहौल? ये ਵਾਈਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? तो अब सब जो है मतलब कि अपसेट हैं इस बात को लेके, पूरा परिवार अपसेट है कि भाई हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो हम भी फाइट कर रहे हैं। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो हम संत आदमी है ना, अगर हम चतुर होते ना इस मामले में तो हम भी कुछ ना कुछ कर देते। हमें परमेश्वर पे भरोसा है, और दूसरा बात प्रशासन पे। हमने जो है जो इंक्वायरी के लिए डिमांड की थी, उन्होंने हमारी इंक्वायरी लगा दी कि जो ਤੁਸੀਂ डिमांड ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਗੀ ਪੂਰੀ? हाँ, जो डिमांड की थी सिट बनाती उन्होंने? हाँ, सिट बना दी कि भाई हमारी दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच है झूठ क्या है, सच क्या है। तो आप सब देख रहे हैं अब आजकल कानून ऐसा बन गया है कि चलो अच्छा है कि पहले लड़की का FIR काटी जाए, कोई भी कह दे कि हाँ छेड़खानी हुई। ऐसे तो बस में दुनिया घूमती है, अब ट्रेन में दुनिया घूमती है, कोई लगाते नहीं छेड़खानी का आरोप। ये तो शुक्र करो हम बस में नहीं जाते, इसका मतलब हम कार में जाते हैं, हमें पता नहीं कितने पर्चे कर देते ये। तो ये तो जो है मतलब कोई कानून ही नहीं रह गया ना किसी के लिए, तो शरीफ आदमी के लिए कोई कानून ही रह गया। मेरे से तो ये आदमी कब से रोकी डिमांड कर रहा है पैसे की। अब इसको पता है मैं केस में हारने वाला हूँ, तो अब ये जो है बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मतलब तरीके से कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन अभी जो है जो दिल्ली वालों ने को भी जो भी मुझे नाम लेना नहीं आता, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग, जो भी महिला संस्था है वो, लेकिन जो उन्होंने कहा है ठीक है, जो इन्होंने कहा है वो ठीक है। हमने तो किसी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? पुलिस ने कांटेक्ट किया है, आज हमारे अवतार जी को बुलाया हुआ है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? मेरे को भी बुलाया नहीं, तो बुलाएंगे तो मैं इसीलिए आ गया हूँ कि क्योंकि मेरे प्रधान को बुलाया तो मुझे आना चाहिए। तो मैं भी अब चंडीगढ़ में बैठा हूँ, तो देखते हैं कि आज वो क्या। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल। देखो आपके चैनल के जरिए ही मैं मैसेज भेज सकता हूँ, हमारी कोई सिफारिश नहीं है, हमारा तो सिफारिश परमेश्वर ही है, हम तो उस पर यकीन रखते हैं। देखो मैं प्रभु में जब आया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यीशु मसीह पे हमारा आना जो है, यीशु मसीह में आना, कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, ये सिर्फ एक प्रोपगंडा रचा जा रहा है कि ये जी धर्म बदलते हैं, कन्वर्शन करते हैं। मुझे पता है 1-2 चैनल पर चल रहा है, लेकिन हमारे पास भी, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे पास भी बहुत सारी कोर्ट हमारे लिए भी है, रिट हम भी लगा सकते हैं, डेफिनेशन का केस। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵਰਜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, बेल दी अर्जी क्यों लाइए, पहला तो परमेश्वर को ही लावांगे ना, प्रार्थना उत्थे ही करांगे। दूसरा क्या है, दूसरी बात क्या है कि हम उस पर तब जाएंगे ना जब हमें यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगा पुलिस प्रशासन से। एक क्योंकि अमूमन आम बंदे नाल, आम व्यक्ति ते ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ, FIR ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं, ये परमेश्वर की दया है। देखो जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा अब क्यों छोड़ेगा, जब मेरे पे झूठा लगाया तब भी। तो ये तो बाइबल के अनुसार ही है कि यूसुफ के ऊपर के एक झूठा ब्लेम लगा दिया था, तो लेकिन ऐसे ही इसने 2018 में लगाया था। तो परमेश्वर की इच्छा है, देखो उसके बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। तो हम दुनिया के लिए, अब अगर मैं मिनिस्टर हूँ या कोई मैं IAS अफसर हूँ तो, या कोई वकील हूँ, तो मैं तो यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या क्या जवाब दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन हमारा मकसद यही है कि भाई परमेश्वर के सामने ही कि भाई मैं
आप ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं गलत होता तो यहाँ से भाग जाता, लेकिन पर हमें न्याय के लिए जो कानून बनाए गए हैं तो वो कानून का सहारा लेना चाहिए, तो हर एक का राइट बनता है। लेकिन जो ये प्रोपगंडा रचा जा रहा है बदनाम करने के लिए हर चैनल पर वो अच्छा नहीं ना। तो हमें तो अब लोग मुझे दूसरे चैनल बोलते हैं कि हमारे चैनल पे आओ, मैं आपके चैनल पे क्यों आऊँ, क्योंकि आप तो बेइज्जती करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, आप तो कैसे कैसे बोल रहे हो। आज कानून बन गया है कि एक लड़की पहले कह रही है कि पहले अरेस्ट करो बजिंदर सिंह को, मतलब आजकल अफसर जो भी न्यूज़ में पहले अरेस्ट करो, पर्चा पहले करो और इंक्वायरी बाद में करो, पहले अरेस्ट करो। ये कौन सा कानून है कि पर्चा जिस लड़की ने अगर कोई भी कह दिया तो ठीक है, तो ऐसे तो कोई भी लड़की कह देगी कल को समाज में। अगर मैं भी जाके कह सकता हूँ अगर किसी के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो आप सब मेरे पास आओ, पैसे मैं खर्चूंगा, मैं लेडीज़ की मदद करूंगा और पुलिस के पास मैं जाऊंगा, जी इनका पर्चा दर्ज करो, बाद में लेकर आना, और इनको पकड़ के लाओ, बाद में न्याय करना, झूठ है कि सच है, पहले उनको अंदर डालो। मैं भी चला जाऊंगा ऐसे, तो किसी के साथ होगा तो आओ मेरे पास। तो देश का कानून है जिस तरह चलता आ रहा है, कई बार कानून तो फिर गलत हो गया ना। पहले अगर मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर जो ये बनाया गया है तो, लेकिन ये ठीक है, एक आधार पे अच्छी तरह से बनाया गया है, तो लगता है कि ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी रिक्शा वाले को क्यों नहीं कर रहे अंदर उठा के। पर वो एकदम से कैसे करते हैं। कोई जाता है चंडीगढ़ में चले जाओ, मैंने चंडीगढ़ में ऐसा कानून नहीं देखा। चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी देखी है कि चंडीगढ़ में कुछ भी होगा पहले वो फटाफट पूछेंगे, पहले वो सारी चीज़ पहले उसका इंक्वायरी करेंगे अच्छे से, वो बिल्कुल नहीं करते। यहाँ मैंने तो आज पंजाब में एक नया ही देख लिया, या मैं देख लिया कि भाई एकदम से किया और भाई चल भाई छुट्टी। ये तो इसका मतलब कि न्याय वाली बात नहीं है ना। तो मेरा तो यहाँ पर यही डिमांड है भाई प्रशासन से, सरकार से कि भाई हम मेरे ऊपर ऐसे ब्लेम ना लगाए जाएं कि भाई मैंने 12 की कॉल दे दी, ये दे दी। वो बहुत अहम है कि ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 12 ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ है। वो देखो क्या हुआ था कि ये कॉल जो है क्रिश्चियन लीडरों ने और बहुत सारे सामाजिक लीडर इकट्ठे होके, जिनके काम नहीं हो रहे थे, उसमें कोई वाल्मीकि भी हैं, हिंदू भी हैं, तो वो सब इनकी एक कमेटी है, वो मेरे पास आए थे क्योंकि 25 तारीख को उन्होंने पहले कॉल दी हुई थी। तो उन्होंने इकट्ठे होकर, उनको पता लगा मेरे साथ ऐसे होगा, तो वो मेरे पास आए थे कि हम 12 तारीख को दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। तो मैंने उस समय ये कह दिया था, मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मेरी इंक्वायरी अगर नहीं लगेगी तो भाई इसका तो मैं तो होऊंगा शामिल, लेकिन अगर जब मेरी इंक्वायरी लगी है तो मैं क्यों शामिल होऊंगा। तो मैंने सिट कॉल चलेगी तो तुम सैटिस्फाइड हो फिलहाल। अभी मैंने उनसे बात की है कि भाई उसको पोस्टपोन किया जाए, बाकी वो आपकी मर्जी है उनकी लीडरों की, तो वो अभी 10 तारीख को वो अपनी कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। कौन है ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਰੇਪ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? देखो, अगर कोई डिसीज़न आ गया या कोई ऐसी बात आ गई या कोई ऐसी चीज़ होगी है। अभी जलंधर में एक पास्टर पर आरोप लगा था रेप का, बिशप के ऊपर, और उनको हाई कोर्ट ने जाके बेल दे दी, ठीक है, वो बाहर आ गए। उसके बाद भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें और वो बिल्कुल उसमें से फ्री हो गए। मतलब क्या होता है कि भाई कुछ जब किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, कोई फेमस हो जाता है, तो लोग रचते ही हैं, प्रोपगंडा रचते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? ये बाइबल 'ਚ लिखा है, कहना कि भाई आने वाले समय मतलब अंत समय की निशानियाँ ये कि जब भविष्यता जो तुम्हारे से पहले भविष्यता थे उनको सताया था, जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये पूरी बाइबल का बयान करती है, चाहे उसमें पास्टर हो, बिशप हो, कोई भी हो, कि सबके ऊपर ऐसे ही छोटे छोटे, कोई उस समय के मुताबिक अनुसार लगाए उस समय लगाए कि कोई चर्च बना रहा था, उसमें उन्होंने राजा को जाकर वो दे दिया एलिगेशन लगाकर। तो उस समय में एक राजा था, तो राजा के जो एक पास्टर था, तो उस समय में उसके ऊपर लगा दिया, यूसुफ के ऊपर लगा दिया एलिगेशन। तो ये मतलब कि ये एक समय है, और एक अगर आस्तिक लोग हैं तो नास्तिक लोग भी हैं, ठीक है ना। विश्वास करने वाले लोग हैं तो ना विश्वास करने वाले लोग भी हैं, एक परमेश्वर को मानने वाले भी हैं, एक दारू पीने वाले लोग हैं। कदों शुरू हुए तुसी, कदों मसीहत दे रस्ते ते आए तुसी, किवें आए? मैं 2008 से आया प्रभु में, और एक्चुअली इसमें क्या था कि मैं पहले
प्रभु को नहीं जानता था, तो मैं बीमार पड़ गया अचानक। और ऐसा बीमार हो गया कि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, मैं चंडीगढ़ पीजीआई लाए। तो वहाँ पर मेरे को ऐसे किसी ने प्रार्थना किया, तो मैं एकदम से ठीक होने लगा। और उसके बाद फिर अचानक ही हमारे घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि जब जिसको प्रॉब्लम होती है उसी को पता होता है, जिसके घर में समस्या उसी को पता है कि भाई समस्या क्या है। तो दूसरे तो मजाक ही उड़ाएंगे। तो मेरा भाई को टीवी का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो पता ही नहीं लग रहा था डॉक्टर को भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर प्रार्थना कराई तो मेरा भाई ठीक हो गया। फिर उसके बाद मम्मी मेरी छत से गिर गई, उसको पैरालाइज का अटैक आ गया। तो फिर उसके बाद हमने भी जगह जगह प्रार्थना किया, तो लेकिन अब एक आस्था बन गई थी। तो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया 72 घंटे में तुम्हारी मम्मी को होश आ गया, तो ठीक है कोमा में चली जाएगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करने देता हूँ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? मैं बैकग्राउंड एक जाट फैमिली से हूँ। तो और उस समय में जो हमें हमारे पुरख बताते थे हम तो वैसे ही करते थे। तो ठीक है, सब लोग जिस तरीके से भगवान को मानते हैं उनकी मर्जी। ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ, तो उसी समय के मैं अब फिर अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करके देखी। अब आप कहो कि मेरे कड़ी चावल खा के देखो, मैं कैसे कह दूं कि आपके कड़ी चावल अच्छे हैं? मैं कहूँगा मेरे खा के देखो, आप कैसे कहोगे अच्छे हैं? तो आप जब मैं खाऊंगा तभी आपकी तारीफ़ करूंगा ना। तो ऐसे ही मुझे किसी ने समझाया, भाई एक बार प्रार्थना तो करके देख, भाई तेरे को लगे तो कर लियो। तो किसी ने मेरे लिए प्रार्थना थोड़ी मम्मी के लिए थोड़ी की, वो मैंने खुद की प्रार्थना। तो मेरी मम्मी को तुरंत होश आ गया, तो मैं कमाल मान गया। और उसके बाद मैं फ़ौज की नौकरी में था। अच्छा, आर्मी में था मैंने। किस रैंक पे सीगे? मैं ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड में था। अच्छा। तो नागपुर में। तो वहाँ से मैं जब आया तो मैं देखा कि मतलब उसके बाद मैं प्रभु में ऐसे मैंने चमत्कार देखे। तो उसके बाद मैंने अब खुद ही प्रार्थना करना शुरू किया। तो मुझे पता ही नहीं, मतलब आस्था है। जब परमेश्वर की कोई बख्शीश होती है किसी के ऊपर, तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, सब छुड़ा देता है। तो ये सब चीज़ें मैंने ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? मतलब कि ये 2012 से फिर मैं परमेश्वर के मैंने सोचा कि भाई जब मैं अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना किया तो कुछ फ़र्क पड़ा। कोई किसी की जॉब नहीं है तो उसके लिए फ़र्क पड़ा। तो ऐसे लोगों को जिनकी आस्था होती चलेगी वो लोगों को बताते चले गए। कुछ लोग गाँवों में गया कहीं तो उनका काम हो गया। जैसे आप आए तो आपको बोल दिया तो आपका काम हो गया। अब आके कुछ लोग कंट्रोवर्सी करने लग जाते हैं, यार हमारा काम करके दिखा। तो वो क्या होता है कि वो तो परमेश्वर के साथ एक जिद हो गया ना, मतलब विश्वास। मतलब अगर आपका विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। तो इसका अगर आपका विश्वास है तो ये पत्थर भी चलाने लग जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अभी क्या है कि आपका विश्वास होना चाहिए। तो आपका विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस पर ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ हैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਫੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ एक ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ हर एक व्यक्ति चंगा हो गया। मतलब कि अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से अगर हमने 12 पे हाथ रखा तो 12 चंगे हो गए। क्योंकि लिखा कह रहा है एक लाने वाले का विश्वास, एक बीमार का विश्वास, मतलब बाइबल बताती है कि एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास और एक मरीज का विश्वास देखा था। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप कैसे करोगे? मतलब ठीक है कि भाई किसी का तो विश्वास मिलना चाहिए ना। 4 पहिए हैं, किसके खाट के 4 पौवे हैं। अगर वो विश्वास है एक ही आदमी का तो वो बच जाएगा, नहीं पर तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨ नहीं कहा। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कह रहा कभी कभी पेट के लिए दाखरस काम में लाया कर, मतलब कि औषधियाँ काम में लाया कर पेट के लिए, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। तो यीशु मसीह ने तो कहा है, मतलब हम तो नहीं कहते कि भाई दवाइयाँ बंद कर दो, हम ये कहते हैं भाई प्रार्थना करो और जो भी खाओ प्रार्थना करके खाओ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, आप पता नहीं क्या कि भाई किसी की जान खतरे से पै जाए। ये ब्लेम तो आप ही लगा रहे हो हमारे। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। नहीं ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ये देखो, कोई अपनी तरफ से नहीं बताया जा रहा, ये आप हमारे ग्रंथ को, हमारे मतलब की जो बाइबल है उसको चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी। उसके अंदर लिखा है, मत्ती के 10 के 8 में भी लिखा है, 8 के 10 में भी लिखा है वहाँ पर। तो एक जगह लिखा, सूबेदार जा, कह रहा तेरे विश्वास के द्वारा तेरा नौकर चंगा हो गया। और एक जगह मत्ती में 10 के उसमें लिखा कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, मतलब कि ये गिफ्ट होते हैं। तो उसमें लिखा कि तुम जो है भविष्यवाणी करोगे और मतलब लोगों के बारे में बताओगे। आप बताओ कौन सा धर्म ऐसा है जिसके अंदर करे भविष्यवाणी नहीं, भविष्यता नहीं होते, लेकिन सारे नहीं होते, थोड़े होते हैं। तो आपको क्या है कि अभी कुछ जेलस करने वाले भी होते हैं, अभी क्या है सब 9 गिफ्ट होते हैं, वो किसी न किसी के ऊपर भविष्यवाणी का वरदान है, किसी के ऊपर हीलिंग का वरदान है, किसी को प्रचार करने का वरदान है। तो अभी क्या है कि वो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन पर ये नहीं होता। अब देखो, जब मैंने मोदी साहब की 3 बार भविष्यवाणी की, तब तो मोदी साहब मेरे पास एक बार भी नहीं आए, इनके चैनल एक बार भी नहीं आए मेरे पास। मैंने कहा ये बनेंगे, मैंने तो सबके सामने बता दिया था। तो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी एक परमेश्वर का बंदा ही हूँ कि अगर परमेश्वर मेरे से बात करता है तो वो आपको पूछ कर तो बात नहीं ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਕੀ है। जब आप जाते हैं कहीं चौंकी पे, बाबे पे, तो वहाँ पे भी जाके तो वो जब वो सिद्धि लगाते हैं तभी वो बताते हैं ना। तो मतलब क्या है कि वो भी अपनी प्रार्थना करते हैं। तो हम जब वहाँ खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारे से बात करता है, तो हमें जिसके बारे में बोलता है तो वो बोल देता है। अभी मैंने देखा कुछ हमारे बारे में कुछ गलत चीज़ें बताई जा रही थी। कोई बच्चा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਬੋਲਣੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸੇਮ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ क्या है कि भाई बाकी ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। बाकी है कि भाई परमेश्वर की इच्छा है कि जो जिसको वो चुन ले, कि आप आज आप बैठे हैं यहाँ पर, आपको चुन ले। ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਲਾਅ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हाँ, वो तो मतलब कि क्या है कि अगर परमेश्वर की मर्जी होती है, जिस व्यक्ति का मतलब मन है कि मैंने आज अफसर ही बनना है, तो वो कहेगा मैंने अगर ये करना है। तो मैंने हाँ ये ज़रूर कहा था कि जब मेरी मम्मी ठीक हुई तो परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूँगा। तो उसके बाद मैंने ना नौकरी किया, ना बिजनेस किया, सेवा किया। तो ये हिप्नोटिज्म का भी सहारा लेंदे हो तुसी? हैं? हिप्नोटाइज भी करते हो लोग? नहीं, ये तो सब मनत गणत बातें हैं। हम हमारे पास ना कोई तागा, ना तवीज़, ना छुरी, ना कोई तागा। तो जो है आप देख लो हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हम खड़े होते हैं हमारे हाथ, हमारी कॉपी, हमारी बाइबल सब जब चेक कर सकते हो आप। तो हमें तो जो प्रभु गवाही करता है वो बताते हैं। जिस धरती तो तुसी लगातार प्रीचिंग कर रहे हो, प्रेयर मीटिंग कर रहे हो, देखो पंजाब की धरती, गुरुआं पीरां की धरती, इत्थे क्रिश्चियनिटी का विस्तार होना पिछले 1.5 दशक ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 2012 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਜਬਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਪੂਰਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ठीक है। तो यीशु मसीह ने यह भी कहा कि भाई वाद विवाद ना करो, ठीक है ना। देखो वो अपनी करते हैं और जहाँ जिसकी आस्था होती है वो चला जाता है। तो अभी जो है हमने तो नहीं किसी के घर गए बुलाने के लिए, हमें तो क्या है कोई फ़ोन नंबर बता दो, ये कहते हैं कि हाँ जी इनकी फंडिंग आती है। अरे मेरे पास इनकम टैक्स वाले भी मेरे पास आए और सब कुछ केस चल रहा है वो भी। लेकिन आप ये देखो कि सब कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू की है, फिर सब कुछ उन्होंने देख लिया कि कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारे पास IS जो भी वो FCRA नंबर होता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सब कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने अप्लाई नहीं किया हुआ। तो इंटरनेशनल फॉरेन फंडिंग नहीं होती। हमारे बैंक चेक हो रहे हैं, हमारी तो बैंक ही बंद पड़ा था अभी तो 1 साल पहले। फिर इन्ना तामझाम है ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ਕੀ है, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ जानना चाहते हैं। आप मंदिर में जाते हो, केले सेब संतरे रखाते हो, एक आदमी आया
दूसरा आदमी आया सोना चांदी चढ़ा जाता है, आप तो उसको अच्छा कहोगे ना। कुछ लोग ऐसे आते हैं वो अपनी मर्जी से चले, जिसका काम बन जाता है तो वो दे के चले जाते हैं। मैं हम कहते हैं भाई लेते नहीं, जो तुमने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ करना ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ करो। ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ तो ਨੂੰ लोग खुद- ਦਸਵੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ये हमारे बाइबल में है कि परमेश्वर ने क्या, हमारी बाइबल में नहीं, ये आपके हर जगह पर लिखा है कि दशवां देना चाहिए। लोग पहले गाँवों में गेहूँ देते थे, ठीक है ना, पीपा मार के ट्राली में से, लेकिन उन्हें देना नहीं आता इसलिए नुकसान में जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा करा जो दशवांश नहीं देता, कहता है कि वो शरापित है। तो मतलब कि इसलिए बाइबल में लिखा जो दशवांश देता है, कह रहा है कि आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, कह रहा है चेक करके देखो। वो तो आप है हर धर्म में कि भाई अगर आप दशवांश देते हैं तो ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। हाँ मेंबर है ना, मेंबरशिप होती है तो वो उनके साथ मेंबरशिप लगी, जो देते हैं उनका हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो वही मिनिस्ट्री चलती है ऐसे। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हाँ है बड़ा फंडा, ये तो अपने लोगों ने चलाया हुआ है। ये तो जो है कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, जेलस है ये, और कुछ नहीं है। देखो अभी क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमने सबको यही बोला भाई जो कोई अच्छा बेस्ट, एक बार हमारे चर्च में चोरी हो गया, दान चोरी हो गया और सारा रिकॉर्ड चोरी हो गया। तो उस समय में हमने ये किया था कि भाई जो दान और ये चोरी होता, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता नहीं लग रहा कि कौन क्या रहा है। हमारे स्टाफ में ही कुछ गड़बड़ हो गया था, तो ऐसे तो वो स्टाफ हमने चेंज कर दिया। और स्टाफ के बाद फिर हमने ये एक बताया था कि भाई जो कोई स्पेशल बीज बोता है, स्पेशल बीज बोना चाहता है चर्च के लिए, शेड के लिए, कुर्सियों के लिए, कुछ भी गरीब लोगों, यहाँ पर देखो हमारे चर्च के बाहर लंगर, अभी देख रहे हैं आप कितने लोग हैं बाहर भी, अभी ये सबको लंगर डेली यहीं चलता है, जैसे आपके इधर चलता है। तो अभी जो है कि उसमें हमने एक ये बताया था कि भाई जो भी कोई स्पेशल बीज बोता है, अगर कोई लंगर के लिए दे के जा रहा है, कुछ दे के जा रहा है, तो वो बेचारा चाहते हैं कि मैं प्रॉफिट से मिल लूँ। तो मैंने कहा भाई मैं इतना टाइम तो है नहीं एक से मिलूँगा, तो मैंने कहा भाई उनको लाइन में खड़े कर दो, उनको अलग से स्पेशल उनके लिए प्रार्थना कर देंगे। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोई ये स्पेशल नहीं है कि भाई वो 25,000 दे, 50,000 दे, हम किसी से पैसे नहीं लेते। अभी मैंने देखा कुछ लोग झूठी वीडियो में बनाई जा रहे कि हाँ जी यहाँ पर तो हम लोगों के लिए फ्री भी सेवा करते हैं, जिसके पास नहीं है वो भी आ जाओ पीछे, हम तो उनकी भी सेवा करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो बीज नहीं बोना चाहता उसके लिए भी करते हैं। तो ये नहीं है कि भाई हम किसी को कोई हमने डिमांड रखी हुई है, कोई हमारा कंपलसरी है। हमने कहा भाई जो बीज बोना चाहता है वो आ सकता ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਲੋਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? है। हम अभी तो ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? काफ़ी हैं, तो ਕਿੰਨਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ? नहीं लाखों में ही है। कितने लाख? अब अभी हमें यूट्यूब पे तो हमें हर संडे देखते ही हैं लोग ना, लाखों यूट्यूब पे भी देखते हैं। 36 लाख फॉलोअर तो आपके सब्सक्राइबर हैं, हाँ, बट ठीक है, हो अभी सकता है कि 40 वो लाख होने वाले हैं। फिजिकल फॉलोअर आपके हैं या आपको मानते हैं या नहीं? हाँ बहुत सारे हैं, मैं तो कहूँगा कि करोड़ों में है। तो मैं क्यों कहूँगा कि 50 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 40 लाख तो वो देख रहे हैं। तो बाकी आप ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਠੀਕ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं मैं नहीं ठीक करता, या ਜਦੋਂ यीशु ਤੁਹਾਡੇ मसीह ਇੱਥੇ ने- प्रेयर मीटिंग यीशु मसीह ने ठीक किया। और जो है कि हम दूसरी बातें ना करते हुए, अब तो टाइम हो गया, तब यही बात ਨਹੀਂ करना ਕਿਉਂਕਿ चाह ਮੈਂ रहा हूं। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਜੁੜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਹਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। देखो ये क्या है कि अभी पंजाब में हमने किसी के खिलाफ ना बोला, ना हमने सुना। और जो देखो मैं तो सबसे अच्छा, मेरे ना सिख लोग जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं कि लेकिन उनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा प्रेम है। यहाँ पर पंजाब में एक शांति का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ अब आप समझदार हैं कि जब इलेक्शन आते हैं या कोई भी पार्टियाँ वगैरह जो हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शांत प्रिय जगह है पंजाब में। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, चाहे हिंदुज़म नाल जुड़े ग्रंथ हों? सबकी अपनी अपनी वो है, आस्था है। तो ऐसे तो हम भी पहले
मानते थे, लेकिन अब मेरी आस्था इधर हो गई तो मैं इधर मानता हूँ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਟਿਮ ਲੜਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਸ਼ੁਗਾਬਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।